So we have to encourage one another every day. So, sister, brother, you can translate, brother Raju. यस यस सो हमें एक दूसरे को हर दिन प्रोत्साहन देना चाहिए. So all of us require encouragement. हम सभी को प्रोत्साहन की आवश्यकता है. So the Apostle Paul also, when he wrote a letter, he wrote the letters to Romans and Corinthians. He said, even though he was much senior to them and much more mature, he said, we can have fellowship and you can encourage me and both of us can encourage each other. और उन्होंने रोमियो के चर्च और कुरिन्थियों को लिखा कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए. आप भी हमें प्रोत्साहन करो, हम भी आपको प्रोत्साहन देते हैं. So Jesus has saved us that we may be drawn together to fellowship with the saints. और प्रभु जो है संतों के साथ, हम सभी को संतों के साथ संगति में चलना चाहिए. So God has not called us to be lonely believers sitting in one place for a long time, but whenever there is a believer, God will always add another believer for having some fellowship. और इसलिए कभी भी हमें अकेला नहीं चलना चाहिए. हर समय संगति में और विश्वासियों की संगति में रहना चाहिए. So at least we can meet at least once a week, maybe a wife or another brother or another sister, that we can have fellowship, and that is the New Testament custom. और इसलिए हमें जो है हफ्ते में जो मिलना चाहिए, हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए. ये नए नियम का जो है एक नियम बताया गया. Then only the Holy Spirit, God is there in the midst of people where two or three are gathered. That is the और church. जहाँ कहीं एक और दो प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु वहां पे रहते हैं और ये एक कलीसिया का निर्माण होता है. And we have come not to just speak about worldly things, about our job, that we can speak a little bit, but we must can encourage each other for our spiritual lives, that we may draw closer to God. और हम यहाँ पे सिर्फ संसार की बातों के बारे में नहीं, बल्कि हमें आत्मिक बातों के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं, जिससे कि प्रभु की महिमा हो. And even after the meeting also, we can share our struggles and encourage one another in our day-to-day life and our problems and give thanks to God. और जब सभा हो जाती है, उसके बाद भी हम प्रभु जो वचनों से प्रोत्साहन देते हैं, हर एक भाइयों को हम प्रोत्साहन दे सकते हैं. And in the church, when we gather, the most important function in the church is to prophesy or to share the word of God. और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कलीसिया में है, हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं. Now, the word Bhavishwani looks like it is a very wrong word in Hindi. It is about encouraging one another, speaking the word of God, like giving a message, sandesh. और भविष्यवाणी का जो मतलब है वो थोड़ा सा अलग टाइप का गलत लग रहा है, क्योंकि ये अलग चर्चा बता रहे, लेकिन उसका मतलब है हमें एक दूसरे के द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए एक दूसरे को. So that we can encourage people to follow the Lord and to walk, obey His commandments and to follow Him more closely. और इससे हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जिससे कि हम प्रभु के संगति में और भी करीब हो जाए. So whenever we gather together in a physical meeting or in a Zoom meeting, we must have something to share and encourage. और जब कभी भी सभा होती है तो हमें हमारे हृदय में जरूर प्रभु के वचन कुछ है जो प्रोत्साहन देने के लिए हमेशा रहना चाहिए. So we can start it from the first day of our spiritual life. और हम जो है पहला दिन से ही आत्मिक जीवन में दौर में चलते रहते हैं. So we can share a song, we can share some encouraging situation that has happened to us. We can share our failures also. हम अपने कभी गीतों के द्वारा प्रोत्साहन दे सकते हैं, या हमारे जीवन में कोई ऐसे हाया प्रभु ने प्रोत्साहन दिया, उसके द्वारा भी प्रोत्साहन दे सकते हैं. और भी बहुत सी चीजें हैं जो प्रभु के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं. The Holy Spirit, we are filled with the Holy Spirit, and the Holy Spirit will tell us what to share. हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर देंगे, तो हम प्रभु हमें बताएंगे क्या शेयर करना है, हमें बोलना चाहिए. You see in Ephesians chapter 5, हम इफिसियों के अध्याय 5 में जाएंगे. इफिसियन चैप्टर 5 verse 18 to 20. 18 से 20 पढ़ेंगे. It says, and do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit,
speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ, given to God, even the Father. दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते तथा कीर्तन करते रहो और सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। So the first gift God gives us is to thank Him and praise Him with our mouths. और पहला चीज है जो हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हमारे मुंह से। Before we came to Christ, we used our mouths for all the wrong things, to grumble, complain, fight, and quarrel. मसीह में आने से पहले हमारा जो ये जवान था, मुंह था, हर प्रकार की कुरकुराहट और झगड़ा और बुरी चीजों में फंसा हुआ था। But when the Holy Spirit comes to our hearts, we give thanks to God and sing His praises. And also to other people, we tell that God is good and God is great. और जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम स्तुति गान और भजन और आत्मिक गीत गाया करते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहन देते हैं। That's why when they received the Holy Spirit on the day of Pentecost, they were praising God in different languages and also prophesying. They're speaking the word of God. और जब पेंटेकोस्त के दिन जो पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने अन्य भाषा में बोलने लगे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे। When we praise the Lord and worship the Lord, then the devil is defeated and the devil has to run away from our lives. और जब कभी भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं, तो शैतान जो है भाग जाता है। And when we speak the word of God and confess in faith, then the devil is defeated. और जब हम विश्वास के साथ प्रभु में विश्वास का अंगीकार करते हैं तो शैतान जो है हार जाता है। It says in Ephesians chapter 6, इफिसियों के अध्याय 6 में verse 17, वचन 17, and taking the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. They stress on the sword of the Spirit, which is the word of God. और उद्धार का तोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। So whenever we have the word of God and we speak the word of God, that the sword is used against the devil and all the demons. और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। Jesus also overcame the devil with the word of God. प्रभु यीशु मसीह भी शैतान के ऊपर जयवंत हुए प्रभु के वचन के द्वारा ही। And speaking the word of God in the message in the meeting, we overcome the devil. और जब हम सभा में प्रभु के वचन के द्वारा बताते हैं तो शैतान के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। So all these messages that the Holy Spirit that we speak will defeat the fortresses of the devil, the power of the devil over our lives and also the lives of people who listen to it. और जब कभी हम प्रभु के वचन के द्वारा हम बातें करते हैं तो उसके द्वारा लोगों को प्रोत्साहन होता है और शैतान भी उनके जीवन से भाग जाता है। Therefore, speaking the word of God is very, very important. और इसलिए जो है परमेश्वर का वचन बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And the devil and all his lies can be exposed. और सब प्रकार की जो झूठी बातें हैं वो सब दिखाई देता है। All our discouragement will go away. और सब प्रकार की जो निराशापन है वो भी चले जाएंगे। And we will praise the name of the Lord. और हम फिर प्रभु की इस नाम की महिमा करेंगे। So that is why it said in 1 Corinthians chapter 14, और इसलिए जो है पहला कुरिन्थियों अध्याय हम 14 में जाएंगे। just pursue love, yet earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. और इसलिए हमें प्रभु के प्रेम को पीछा करना है और खास तौर पे भविष्यवाणी करना है। So we must give the messages of God. हम सब प्रभु के संदेश को दे सकते हैं। So whatever message God has given us in our own personal lives, we can share. और जो भी प्रभु ने हमारे व्यक्तिगत जीवन में बताया है वो हम बता सकते हैं। Whatever trials that we are going through currently, God has allowed it to come so that we may learn something and we may also share with our brothers and sisters. और जो भी कठिनाइयां दुख संकट हमारे जीवन में अभी के समय में आ रहे हैं उसके द्वारा जो प्रभु आपको प्रोत्साहन देते हैं आप भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। So speaking the messages of God are the most important gift and the
we should do that with our tongue, open our mouth in boldness and faith. और सबसे महत्वपूर्ण जो वरदान है, हम अपने जवान मुंह को खोले और प्रभु के वचन को बांटे। It says in verse 3 of chapter 14, 1 Corinthians chapter 14, verse 3. पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 3। The one who prophesies speaks to men for edification, exhortation, and consolation. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो आत्मिक उन्नति, उपदेश तथा संतावना देने के लिए मनुष्यों से बोलता है। So we get a lot of comfort from the Lord, and we also exhorted to live a more faithful life. और हम प्रभु के द्वारा जो है शांति आराम पाते हैं, जिससे कि हम विश्वास योग्य जीवन जी सके। And we get encouraged. और फिर हम प्रोत्साहन भी पा जाते हैं। Whenever the God is there in our midst, there is always encouragement. प्रभु जहाँ हमारे बीच में रहते हैं तो हमेशा प्रोत्साहन ही हमें मिलता है। So all those who are eager for God will be encouraged to follow after the Lord, and we will be filled with joy after the meeting. जो कोई प्रभु के पीछा करने के लिए उत्साहित है और उनके लिए तरस है, प्रभु उनके द्वारा जरूर दूसरों को भी प्रोत्साहन देंगे। We can also speak in tongues in our private life. हम अपने व्यक्तिगत गुप्त जीवन में हम अन्य भाषा में बातें कर सकते हैं। But that will encourage only ourselves. लेकिन वो जो है आपके खुद के जीवन में ही से प्रोत्साहन देगा। Speaking in tongues is not desirable in the meeting because others will not understand unless there is a person who can translate that what he has said. सभा में जब अन्य भाषा में बातें होती है तो समझ में किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको अनुवाद करना पड़ता है। So in the Corinthian church, there were a lot of people who were speaking in tongues and nobody could understand what they were saying. और कुरिन्थियों चर्च में ऐसा हुआ कि सब अन्य भाषा में वरदान बातें कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को उस भाषा का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। But the Apostle Paul told them not to speak in tongues, but to prophesy. That is the most important gift. प्रेरित पौलुस ने कहा कि अन्य भाषा में ज्यादा हमें बात नहीं करना, हमें भविष्यवाणी करना है, उससे बातें करना है। And verse 31 of chapter 14, 1 Corinthians chapter 14. उसी अध्याय में 14 में पहला कुरिन्थियों अध्याय में देखेंगे। For you can all prophesy one by one, so that all may learn and all may be exhorted. और वचन 31, क्योंकि तुम सब एक एक करके नवोत्तम कर सकते हो, जिससे सब सीखे और सबको शांति मिले। So all of us can give the messages of God one by one. हम सभी जो है प्रभु के संदेश को एक एक करके बता सकते हैं। So everybody can learn and everybody can be encouraged. जिससे कि सभी लोग सीखे और सब प्रोत्साहन पाले। So whenever we meet each other also on the phone or any other time, just encourage one another, speak the word of God. जब कभी भी आप भाइयों से मिलते हैं या फोन पे बातें करते हैं या किसी और के द्वारा, तो हमेशा प्रभु के वचनों के द्वारा प्रोत्साहन दे दें। You can speak to your wife, you can speak to your relatives. You can speak the word of God. आप अपने पत्नी से प्रभु के बारे में बात कर सकते हैं और रिलेटिव से भी प्रभु के वचन को बोल सकते हैं। And when we speak the word of God to unbelievers also, the Holy Spirit can speak to them through the word of God. और जब कभी भी आप अविश्वासियों से प्रभु के वचन के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर जरूर उनके हृदय में बातें करेगा। And we can speak the word of God according to the proportion of our faith, according to our faith. हमें प्रभु के वचन को बांटना है हमारे विश्वास के अनुसार। We must not try to speak like Brother Zach and to speak for a long time, but according to the time limit that is given us, speak to the point and speak to what God has encouraged us. जो बातें आपको प्रभु ने प्रोत्साहन दिया, उसी बात को आप बता सकते हैं। उनके ब्रदर जैक के जैसा नहीं, हमें जो प्रभु ने प्रोत्साहन दिया उसी बात को सामने रखें। If God gives you maturity to speak, then we can speak when there is time, and God will increase your faith in that situation. यदि परमेश्वर ने आपको उसमें बुद्धि दिया है, समझ दिया है, तो प्रभु आपको अपने समय में जरूर बोलने का मौका देंगे। And God will enable us to speak according to our maturity of Christian life. और मसीह जीवन में हमारी जो जीवन है, बुद्धि है, समझ है, उसके अनुसार से हमें प्रभु के बारे में बता सकते हैं। So when the Apostle Paul was speaking to the Corinthians, they were very childish type of Christians, and there were a lot of faults they had and a lot of sins. But God, the Apostle Paul encouraged them to encourage one another to come closer to the Lord.
प्रेरित पौलुस ने भी प्रोत्साहन दिया कि वो, क्योंकि विश्वासी लोग कई लोग थे बच्चे के जैसा बर्ताव कर रहे थे और प्रभु ने उन्हें प्रेरित पौलुस ने उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया। So he said, you must also encourage one another to live for the Lord. उन्होंने कहा कि आप भी अब प्रोत्साहन कर सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। So when we encourage others, God will also encourage us. और जब कभी भी हम भाइयों और दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं, परमेश्वर भी हमें प्रोत्साहन देते हैं। So when we give to others, God will give back to us. जब हम दूसरों को देते हैं, परमेश्वर भी हमें देंगे। When I first started sharing in the weekday meetings when I was quite young, maybe I was just around 20 years old. जब मैं मिड डे मीटिंग में जब मैं 20 साल के उम्र में जवान था, तभी मैं वचनों को बांट रहा था। So I would share for about few minutes. तो उस समय मैं थोड़ी बातों को बताता था। I used to be quite nervous. I don't know how to share a little bit, whether I'll share properly or not. I would have a little fear. उस समय मैं बहुत थोड़ा सा घबरा जाता था और मैं अंदर घबराहट रहती थी कि थोड़ा ही शेयर हुआ और या बाद में शेयर करूं। Sometimes when I went to share, I could not even remember what I wanted to share. जब मैं बातों को बताता था तो मैं भूल जाता था कि मैंने क्या शेयर किया। So, but then we must keep on persisting, and then that God will give us the words to share. और लेकिन मैं उस बातों में डटा रहा और प्रभु ने मुझे प्रोत्साहन दिया बातों को बताने के लिए। And we are sharing to our own family, of the family of God who love us. हमें उन परमेश्वर के जो वंश है उनको हमें शेयर करते हैं जो प्रभु से हमसे प्रेम रखते हैं। So we have to say that uh, we have to love our brothers and sisters in Christ, and that's why we encourage them. हमें भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, इसके लिए हम प्रोत्साहन देते हैं। We sang this beautiful song like "Warm Their Hearts, Beloved Brothers." जिस प्रकार से अभी हमने एक सुंदर गीत सुना कि हमें भाइयों को उन्हें प्रोत्साहन दे दें। Yeah, and just like a loving mother, she encourages her children and corrects her children. We also have to be like a loving mother towards our brothers and sisters. जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों से प्रेम से बर्ताव रखती है, उसी प्रकार से हमें भाइयों को भी हमें उन्हें उन्हें शांति देना है। So many children are prevented from doing foolish things when they listen to their mother and their father. और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो माँ-बाप के द्वारा जो है प्रभावित होके अलग मूर्खता में कर रहे हैं। No, they don't fall into foolishness when they listen to their parents. और जब कभी माँ-बाप की वो बातों को सुनते हैं तो मूर्खता की ओर नहीं जाते हैं। So that is a great safety for us in the church when we get to listen to the word of God and can be encouraged by one another. और ये बहुत ही अच्छी बात है जब हम भाइयों से सुनते, प्रोत्साहन देते हैं और एक दूसरे के द्वारा हम प्रोत्साहन पाते हैं। So brothers, whatever we are going through in our life, we can share and encourage one another. और इसलिए भाइयों जो भी प्रभु ने आपके जीवन में प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप उनके द्वारा शेयर कर सकते हैं। We go through so many trials and troubles for so many people. Sometimes sicknesses come, uncertainties for the future come. But God is always there too. When we look to God, God will give us a word and encourage us. हम सभी जो है बहुत सारे कठिनाइयों, दुखों और अलग-अलग बातों के द्वारा हम जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमें प्रोत्साहन देता है, हमें संभालता है। And so we also can encourage our dear brothers and sisters. और इसलिए भाइयों हम सभी भाइयों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं। So God has allowed these situations to come so that it's not only for our benefit, but also the benefit of our brothers and sisters. और परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में जो है आने देता है इसलिए कि हम उसके द्वारा प्रोत्साहन पाके भाइयों-बहनों को भी प्रोत्साहन दे दें। So brothers, whenever you come, try to get prepared. At least speak for something. Say, what shall I share today? With the word of God, and God will give you a word to share. और इसलिए भाइयों जब कभी भी आप प्रभु की सभा में आते हैं, आपके पास ज़रूर कुछ प्रभु के एक वचन शेयर करने के लिए रहना चाहिए। Don't try to give a long preaching or teaching, but something from your heart, what God has taught you, that you share. और कुछ लंबा या संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रभु ने आपको प्रोत्साहन दिया है, आप ज़रूर उसे बताएँ। So, dear brothers, now we can start sharing one by one. All of us can open our mouth, and it's good to open our mouth and thank God and share what God is teaching all in different situations, in our different lives, day-to-day lives. So we have an opportunity now to hear everybody one by one.
तो आइए भाइयों, हम अपने मुंह को खोले और प्रभु के वचन के द्वारा प्रोत्साहन दे दें। आमीन। So anybody can start. कोई भी शुरू कर सकते हैं। अपने अपने जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ हमको बता रहा है, बाइबल रीडिंग के बारे में, प्रार्थना के बारे में, धन्यवाद के बारे में, लेजीनेस के बारे में, कितना सारा चीज है। हम लोग सब प्रभु की वचन हमको वचन से या कुछ ना कुछ प्रभु हमको वचन देंगे। तो एनीबडी कैन स्टार्ट, कोई भी शुरू कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सच्ची में हमारा परमेश्वर बहुत विश्वासु है और दयालु परमेश्वर है, और वो हमको हर दिन हमको चलाता है। मैं एक्चुअली कल परसों में ब्रदर जैक का मैसेज पढ़ रहा था, सुन रहा था। तो फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका 18वां अध्याय, लुक सुबोधमा उसका 18वां अध्याय, और ये उसमें ऐसा लिखा है कि जो एक विधवा स्त्री थी, और वो क्या बोलती है, बार बार वो जाके वो अपने वैरी जो है उससे मुझे छुटकारा दे दे करके वो बोलती है। तो मैं वो बहुत एंकरेज हो गया कि एक्चुअली हम बहुत प्रेयर करने के लिए या प्रभु से बात करने के लिए हम बहुत कम है, क्योंकि हम इतना 24 घंटा जो हम लोग जीते हैं, लेकिन एक 10 या 15 मिनट भी हम लोग प्रभु के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन उसमें ऐसा लगे, प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। तो मैं ये सीखा कि एक्चुअली अपन जो जी रहे हैं उसका वैरी जो है वो शैतान है एक्चुअली, क्योंकि वो विधवा स्त्री, उसको ना बच्चे हैं, ना उसको पति है, ना उसको कोई नहीं है। लेकिन मैं भी ऐसा सीखा कि अपना हृदय जो है, हृदय का हर एक पार्ट शैतान कभी भी आके एक पार्ट चुरा के ले जाता है। कैसा चुरा के लेके जाता है, किसी बंधु हमको के ऊपर प्यार, प्रभु ने सिखाया हमको उसके ऊपर प्यार करो, तो प्यार करने के लिए वो नहीं, हमको हृदय कठिन कर देता है, और क्षमा करने के लिए हमारा हृदय कठिन कर देता है। तो प्रभु ने जो बताया, तुम हमारे जो वैरी है उसके ऊपर तुम प्यार करो, उसको क्षमा करो। लेकिन हम हर बार हमारा देह में, हमारा जीव में रहते हैं हम लोग, तो ये प्रभु का वाणी हम भी जास्ती सुनते नहीं है। तो मुझे सच्ची में तो हम हर दिन हर समय हम पहले ये पृथ्वी को जो जी रहा है, तो हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो शैतान उसके ऊपर है। शैतान के ऊपर का हमारा युद्ध उसको भगाने का है। एक्चुअली शैतान हार चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने उसने उसके मरण और पुनरुत्थान के बाद में, वो जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा, तभी शैतान हार चुका है। लेकिन वो दिव्य दूत था वो, लेकिन उसको बहुत नॉलेज है। वो कभी भी विश्वासियों के पास दिव्य दूत का रूप धारण करके आता है। तो मैं इतना गंभीर से लिया कि हमारे जीवन में हम हर एक, प्रभु हमको क्या बोलता है, नीति सूत्र में उसका 10वां अध्याय और 11वां वचन में लिखा है, तुम किसी का द्वेष मत करो किसी का। तो हम किसी का द्वेष मत करो, क्योंकि प्रभु ने उसको प्यार से उसमें उसका क्षमा किया है। तो हम वही उल्टा, हम वही करते हैं, हम द्वेष करते हैं, और जो प्रभु ने जो प्यार सिखाया वो प्यार हम नहीं करते। तो ये हमको अगर प्रभु का जीवन में रिकॉर्ड होना है, तो हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट आता है, उससे हम कभी निराश नहीं होने का। और प्रभु ने जो वचन बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक संकल्प रखा है, वो संकल्प अच्छा है,
वो बुराई के लिए नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, और हमको एक्चुअली प्रभु ने हमको जीवन आनंदी और शांति से रहने के लिए दिया है। लेकिन हम खुद का हृदय कठिन करके प्रभु का वचन नहीं सुन के, उसके प्रभु के पास नहीं जाके खुद का हिम्मत से, खुद का ताकत से जीना चाहते हैं, तो हम दुख और कष्ट में जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। हम हमारा प्रार्थना करने के लिए भी जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान को दम करना चाहिए, उसको बांधना चाहिए, तभी हमको हमको प्रकाश प्राप्त होगा, प्रभु का आत्मा मिल जाएगा, और हम आत्मा में से भरपूर होके हम पवित्र इस जीवन में प्रभु के लिए जी सकेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आमीन। Amen. I want to thank and praise God, and want to share something which God has been speaking to me. In John 14:5 to 7, it says that Thomas said to him, that's Jesus, "Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way?" And Jesus I think answered, brother Raju can just translate for us, so others also can understand it in Hindi. श्योर ब्रदर। तो मैं यूहन्ना के अध्याय 14 में 5 से 7 पढ़ रहा था। so Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." प्रभु यीशु ने उत्तर दिया कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। If you really know me, you will know my Father also, and from now you do know him and you have seen him. और यदि तुम मुझे जानते तो यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। So this particular verse actually, when any trials or any tribulation comes, that's a guarantee that God loves me. And if he loves me, sorry, yeah brother. या जब कभी भी मेरे जीवन में संकट और तकलीफ से जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। And through this situation, he helps me to understand him, and through him, my loving Father. और उस परिस्थिति में प्रभु मुझे प्रोत्साहन देते, प्रभु से मैं उनके प्रेम के बारे में, और फिर मैं उनसे प्रेम में रहता हूँ। If my Lord Jesus has called me to this new life, I need not have to bother or get worried about the things that are happening. But as Brother George says, that we should always focus our eyes on Jesus and walk the way of faith. यस, प्रभु परमेश्वर जब भी हम दुख तकलीफों में जाते हैं तो हमें प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, और जैसे ब्रदर जॉर्ज ने भी कहा कि हमें उनके ऊपर ही फिक्स और हमें उनके ऊपर ही आंखें लगाए रहना है। So what, it is not important why that situation is happening, or it's useless, because my wisdom is nothing, not even a dot to what he's trying to do and what he's trying, because I know that Lord Jesus came into this world to make me united with Abba Father, and that is what he's trying to change me. और मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे जीवन में ये सब परिस्थितियां क्यों आ रही है, लेकिन प्रभु ने मुझे मुझे संगति में मिलाने के लिए आए, और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। I want to thank and praise God. प्रभु की स्तुति। आमीन। जल्दी शुरू करो, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। कोई आपके मन में कुछ है तो कर सकते हैं। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन के द्वारा भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तो कुछ वचनों के द्वारा मैं शेयर करना चाहूँगा। निर्गमन 22 में मैं जब 27 पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा,
तो भी जब वह मेरी दुहाई देगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, और क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो हृदय है, मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर कितने यहाँ पे कह रहे हैं कि आई एम ग्रेसियस, आई विल हियर हिम फॉर आई एम ग्रेसियस। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे बारे में ख्याल रखते हैं, हमारे, और वो उन लोग को भी ख्याल रखते हैं जो लोग जिनके कोई सहारा नहीं है। वो परमेश्वर क्योंकि करुणामय है, तो इससे भी मुझे प्रोत्साहन मिला कि हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। वो हमारे कि हम हर दिन कितना सारा आंखों के द्वारा, विचारों के द्वारा और बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमें बचाते हैं, हमें मौका देते हैं कि वापस आ जाओ और लौट के। और क्योंकि इज़राइल में भी जब हम 18 पढ़ते हैं, 30 देखते कि प्रभु कहते हैं कि हे इज़राइल के लोग, तुम क्यों मरो, मैं मन फिराओ, मेरे पास आओ। और प्रभु कहते हैं कि मन फिराओ और जियो। तो ये वचन से प्रोत्साहन मिला। और एक वचन साम्स भजन संहिता भी पढ़ रहा था 92 92 15 में, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, दे विल डिक्लेयर द लॉर्ड इज जस्ट एंड ही इज माई रॉक, देयर इज नो इविल इन हिम। तो प्रभु प्रोत्साहन दे रहे थे कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, और हमें उसमें कोई भी बुराई नहीं है। और हर दिन उन्होंने अपने शरीर में भी इस पृथ्वी पे आके जीवन दिया, लोगों को चंगा किया, और लोगों को परमेश्वर ने भलाई किया। और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे गंदे आदतें थे, बहुत सारे ऐसी बातें थी जो समय को दुरुपयोग करना था, और अलग अलग बातें, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि हर समय प्रभु के लिए, महिमा के लिए जीने के लिए, और उनकी उन्हीं के साथ साथ चलना चाहिए। तो ये बातों से प्रोत्साहन मिला। और आखिरी एक वचन है, उसमें बताता हूँ, नीति वचन 16 में 3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तो प्रभु, कभी भी मैं चिंताओं में रहता हूँ, या कोई अलग अलग बातें या कोई ऐसी बातें हमें आने के लिए निराश करती है, तो प्रभु परमेश्वर प्रोत्साहन देते हैं कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, और उस इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। तो प्रभु भी मुझे प्रोत्साहन देते हैं, और जैसे पॉल भी कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु गिव मी स्ट्रेंथ। तो प्रभु की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। बाकी ब्रदर्स भी शुरू करो। तो लक्ष्मी प्रसाद है तो बहुत बात करेंगे। राम सरन, क्या बोलिए। हाँ हाँ ब्रदर, मैं एक वचन शेयर कर रहा हूँ परमेश्वर का। पहले कुरिन्थियों 5वां अध्याय और वचन है 6 और 7। तुम्हारे घमंड तुम्हारे घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते, क्या सॉरी क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ी सा अखमीरी पूरे गुंदे हुए आटे को अखमीर कर देता है। 7वां, पुराना अखमीरी निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी तो हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीही के बलिदान हुए हैं। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि जो अपना अंदर में, अखमीरी का मतलब खमीर बता रहे हैं खमीर कि अखमीरी ब्रदर, अखमीरी हाँ अखमीरी मत। मेरी, हाँ ईस्ट ईस्ट। तो अंदर से वो बोल रहे हैं कि अंदर में जितना पुराना आटा है उसको निकालने के लिए बोल रहे हैं, और नया आटा गूंदने के लिए बोल रहे हैं। तो परमेश्वर यहाँ दर्शा रहे हैं अपने अंदर में जितना गंदगी है उसको निकाल के, और नया एकदम अंदर से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए इंसान को जो विश्वास में है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन।
अभी तरह से कृष्णा, दयानंद, लक्ष्मी प्रसाद भी है तो वो थोड़ा बहुत बोल दीजिए प्रभु का धन्यवाद के लिए। तो सुरेश, रमेश, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर मुझे बहुत सी बातें सिखा रहे हैं। एक बात जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई कि मुझे ना मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनना चाहिए। क्योंकि हम ऑफिस में भले काम करते हो या कहीं पे चर्च में काम करते हो या कुछ भी कहीं पे भी कुछ काम करते हो, मोस्टली पहले मेरे जीवन में कैसा रहता था कि मैं हमेशा मनुष्य को खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन बहुत बार ब्रदर के वचन के द्वारा, जैक ब्रदर के वचन के द्वारा मुझे फिर बाद में मैंने वो सारे वचन सुन के जब मैंने अपने लाइफ में मैंने देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर को नजरअंदाज करके मनुष्य को खुश करने की कोशिश करता हूँ किसी भी बातों में। तो मुझे ये बात छोड़ना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगा कि मुझे प्रभु जी आप जैसा बनाओ। जैसे यीशु मसीह ने जब पतरस ने कहा कि जब यीशु मसीह बोल रहा था कि मेरे साथ क्रूस पे क्रूसिफिकेशन होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो तब पतरस उसे रोकता है और बोलता है कि प्रभु आपके साथ ऐसा ना हो। लेकिन वहां पे पर यीशु मसीह का इतना फेवर में रहने के बावजूद यीशु मसीह उसे डांटते कि तुम हे शैतान करके बोल के उसे दूर हट जा, उसे दूर हटाते और बोलते कि मैं मनुष्य को एक उन्होंने वहां पे देखा नहीं कि पतरस उसके फेवर में बात कर रहे थे, लेकिन पर यीशु मसीह का पूरा ध्यान परमेश्वर को प्रसन्न करना था। तो मुझे भी मेरे जीवन में ऐसा लागू करना है कि हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करूं और मुझे हमेशा यही ध्यान करना चाहिए मैं जो भी काम कर रहा हूँ इससे कौन प्रसन्न हो रहा है, परमेश्वर या मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूँ। तो ये जो बातें इन दिनों में मुझे सीखने को मिली। और एक बात है कि अब इन दिनों में मैं और मेरी पत्नी हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो गए प्रभु की इच्छा अनुसार होने दो। तो हम लोग हमारे जीवन में क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो भी होता है सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है। तो अभी हमने सब एजम्पशन करना, सब सोचना हमने मोस्टली स्टॉप कर दिया। अभी जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा अनुसार होना करके हमने अपने लाइफ को पूरा परमेश्वर को सरेंडर किया। तो ऐसा करने से परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य किए जो हमने सोचा नहीं था, उससे भी बड़े बड़े कार्य किए। तो परमेश्वर को इस सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। अभी ब्रदर से प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बोलो ब्रदर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जगह मैं काम करता हूँ यहाँ पास बहुत मतलब हल्ला गुल्ला रहता है, जिसकी वजह से मैं मेरे रूम के बगल पे मैं ज्यादा सैर भी नहीं कर सकता और उन लोग का हल्ला गुल्ला बहुत ज्यादा है। इस वजह से मेरे को थोड़ा दूर आना पड़ता है। इस समय मैं नीति वचन पढ़ रहा था और उसमें मैं देख रहा था और मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानवान समझ रहा था अपने आप को। पर जैसे जैसे मैंने नीति वचन को देखा और तो मैं अपने आप को मूर्ख पाया और ये मैंने जाना कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मुझ में ज्ञान की कमी है। और मैं ये सोचता था कि मैं बाइबिल तो सब पूरी उत्पत्ति से प्रकाश से उसको पढ़ा हूँ, मैं सबको समझता हूँ, पर मैंने ये देखा कि मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। वो मेरे मन पे एक प्रकार का ज्ञान था। और इस बार मैं भाई जॉर्ज थॉमस को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और मुझे आगे बढ़ाया। और भाई जय पुनन ने अपने नीति वचन की पुस्तक लिखे हैं जिनके द्वारा मैं पढ़कर प्रोत्साहित हो रहा हूँ और मेरे जीव को और काम करने की जगह पर कैसे मेहनत करना है, कैसे अपने पैसों का उपयोग करना है, मैं सीख रहा हूँ। और मुझे परमेश्वर धीरे धीरे अपने मार्गों पे बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
तो ये 2-3 ब्रदर्स और भी शेयर कर सकते हैं, टाइम है। प्रशांत कुछ बोलना चाहते हैं? ऋषभ, सुरेश? मुझे भी कुछ शेयर करना था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत प्रभु ने संभाला। अभी एग्जाम के टाइम पे काफी मैं मीटिंग से मतलब ट्रांसलेशन भी बंद हो गया और प्रार्थना जैसे प्रभु का धन्यवाद करना और शेयर करना भी बहुत कम हो गया। तो मुझे वो कहीं ना अभी भी प्रभु मुझसे बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि वो सही नहीं था। मुझे भले ही मतलब क्योंकि मैं कितना भी सोच लूँ मैं पूरा प्रोडक्टिविटी पूरी दिन भर की नहीं आती है। मतलब कि ऐसे टाइम बचाना कि नहीं प्रार्थना के टाइम पे भी मीटिंग सुनते सुनते पढ़ाई कर लूँ, तो ये ऐसा गलत है। तो प्रभु ने मुझसे बात किया और मुझे मैं चाहता हूँ कि प्रभु जो बोल रहे हैं वो मैं कर सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए भी कि प्रभु पढ़ाई में भी बहुत मदद कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कोई कोचिंग भी नहीं थी और गाइडेंस भी पूरा ढंग से नहीं था, फिर भी कैसे कहाँ से पढ़ना है और समय समय पर सब कुछ प्रभु बताते गए धीरे धीरे। और बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे गेट प्रभु ने खोले और मुझे बताया कि यहाँ से पढ़ो, ये इसको ऐसे करो। तो बहुत मुझे अद्भुत लग रहा है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं हर चीज़ जो करता हूँ तो पहले मैं ऐसे ही समझता था कि हाँ मैं कर लूंगा, मुझे अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस रहता था। पर ये वाला एक जो एग्जाम ये जो मतलब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का ऐसा फेज है जहाँ पे प्रभु ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि से हम करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं हो पाएगा। और प्रभु बहुत और भी अद्भुत काम है और भी अद्भुत बातें जो प्रभु ने सिखाई। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं काफ़ी टाइम से मैंने शेयर भी नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई जो मैं जब प्रभु मुझे मदद करेंगे अनुग्रह देंगे तो मैं बाद में भी उसे शेयर करूंगा। और आप सब प्रार्थना करती दीजिए। हम मेरे लिए भी अभिषेक के लिए भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रभु के साथ हम बने रहें, प्रभु की संगति में रहें। क्योंकि पढ़ाई और ये इन सब में हमारा ध्यान प्रभु से कहीं दूर ना हो और जो भी हम करें प्रभु की महिमा के लिए करें। तो धन्यवाद। और कोई 2 मिनट के लिए कुछ शेयर कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए? मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मुझसे भी बात कर रहे थे, जैसे एक वचन है वो यशायाह यहेजकेल में पढ़ रहा था मैं, तो उसी में कहीं लिखा है कि अपने वस्त्र को नहीं अपने मनी को फाड़ के मेरे पास आओ। तो प्रभु मुझे एनकरेज कर रहे थे कि मतलब मैं बहुत लंबे टाइम से मतलब sin में था और प्रभु मुझे एनकरेज कर रहे हैं कि मैं उससे निकलूं और पूरी रीति से उसे छोड़ के प्रभु के पास आऊं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु की स्तुति है। तो ब्रदर्स हर मीटिंग में हम लोग आएंगे तो हम प्रभु से पहले बात करेंगे, प्रभु मुझे जब कुछ शेयर करने के लिए मुझे दे दीजिए। वचन आप क्या सिखा रहे हैं मुझे, मेरे व्यक्तिगत जीवन से क्या सिखा रहे हैं प्रभु जी। और वचन में जब पढ़ते हैं, मैसेज भी सुनते हैं, कई बाइबल स्टडी भी सुनते हैं, तो प्रभु का वचन हमको अपना दिल में रखना चाहिए, उसके ऊपर हम मनन करना चाहिए। तभी हमको हमारा भी प्रोत्साहन होगा और दूसरों का भी प्रोत्साहन होगा। हम दूसरों को जब ज्यादा प्रोत्साहन करते हैं, हमारा भी ज्यादा और प्रोत्साहन होता है। जैसे प्रभु ने कहा कि जो दूसरों को पानी देते हैं उनको प्रभु उनको ही पानी देते हैं। इसलिए हम कभी सबको भलाई करके जाना चाहिए, वर्ड्स में, कामों में भलाई करते जाना चाहिए। तो दैट्स हाउ द सीक्रेट ऑफ ग्रोथ। जब दूसरों को भी बांटेंगे तो प्रभु हमारा भी भलाई जरूर करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको जरूर देंगे। So Prabhu, we should be unselfish and love the Lord with all of our hearts.